چین 80 ممالک اور 3 بین الاقوامی تنظیموں کو ویکسین کی امداد مہیا کر رہا ہے۔ 40 سے زائد ممالک میں ویکسین برآمد کرتا ہے اور ویکسین کی تحقیق، ترقی اور پیداوار میں 10 سے زائد ممالک کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ارتھ سائنسز کے شعبے میں پاک چین عالمی تعاون کوئی غیر عملی منصوبہ نہیں رکھتا اور روزمرہ کی زندگی سے دور ہے۔ دراصل یہ دونوں ممالک کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ چینی روایتی طب کا ڈاکٹر جگر کے کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے پاکستان گیا اور ایک پاکستانی ڈاکٹر نے میڈیکل کے شعبے میں تعاون کے لیے چین کا سفر کیا۔ چین اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر 70+70 کی اس قسط میں آئیے سنتے ہیں چو چی چوین اور وکاس کی کہانیاں۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان چین کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے کووڈ ویکسین تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں چین اور پاکستان کے تعاون کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ جیسے ہی کووڈ-19 وبا پھیلی ہے، چینی ویکسینز کو تیزی سے عالمی سطح پر عوامی ادویات سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی جانب سے خریدی گئی کووڈ-19 ویکسینز کی پہلی کھیپ چین سے حال ہی میں اسلام آباد پہنچی، جو چین سے موصول ہونے والی کووڈ-19 ویکسینز کی چوتھی کھیپ ہے۔ چین نے پاکستان کو کووڈ-19 ویکسینز کے 3 بیچوں کا عطیہ دیا ہے۔ یہ ویکسینز کلینکل ٹرائل کے قابل اعتماد ڈیٹا پر مبنی ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت پاکستان میں استعمال ہونے والی ویکسین سے حفاظت ہوگی اور وہ دوسرے ممالک میں بھی اچھی طرح سے کام کر رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ویکسینز ہیں۔ دنیا بھر میں طبی وسائل کی یکساں تقسیم طویل عرصے سے ایک مسئلہ رہا ہے اور اب کووڈ-19 وبا نے اس مسئلے کی سنگینی کو اجاگر کیا ہے۔ چین 80 ممالک اور 3 بین الاقوامی تنظیموں کو ویکسین کی امداد مہیا کر رہا ہے۔ 40 سے زائد ممالک میں ویکسین برآمد کرتا ہے اور ویکسین کی تحقیق، ترقی اور پیداوار میں 10 سے زائد ممالک کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ وبا کے دوران چین اور پاکستان کے مابین طبی تعاون خاص طور پر اہم رہا ہے۔ پچھلے سال اپریل میں چین نے پاکستان کو میڈیکل ٹیمیں اور سامان بھیجا اور وہاں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے ایک عارضی ہسپتال بنایا۔ چینی فوجی میڈیکل ٹیم کے سربراہ چاؤ فائی ہو نے اس تجربے کو ایک ہاتھ سے مقابلہ کے طور پر بیان کیا۔ ہم اپریل کے آخر میں وہاں گئے تھے۔ اس وقت چین میں کووڈ-19 کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن آس پاس کے ممالک میں انفیکشن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں کی صورتحال اور بھی خراب تھی۔ مزید یہ کہ اس وقت نیوکلک ایسڈ کا پتہ لگانے کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود گلی محلوں میں کچھ ممکنہ کیس ہو سکتے ہیں جن سے صحت عامہ کا ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ انسداد وبا میڈیکل ماہر ٹیم کا بنیادی کام نہ صرف وبا کے خلاف حاصل ہونے والے تجربے پر مبنی ایک مکمل انسداد وبا نظام، روک تھام اور کنٹرول کے عمل کو قائم کرنا ہے، بلکہ فرنٹ لائن پر کووڈ-19 سے براہ راست لڑنا بھی ہے۔ ہم نے کووڈ-19 کے مریضوں کا علاج کیا۔ ہم پاکستان کی درخواست پر کچھ دیگر ہسپتالوں میں بھی گئے جہاں متعلقہ مریضوں کے حوالے سے ہونے والی گفتگو اور کووڈ-19 کے علاج کی تربیت میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ہم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر گئے۔ ہم میڈیکل سٹاف کی تربیت کے لیے لاہور اور کراچی بھی گئے۔ شمال میں اسلام آباد سے لے کر جنوب میں لاہور تک ہم پاکستان میں کووڈ-19 کی روک تھام اور کنٹرول سے متعلق رہنمائی کر رہے ہیں۔ چینی انسداد وبا کے ماہر جہاں پاکستان میں کووڈ-19 سے لڑنے میں مصروف تھے،
वहीं पाकिस्तान के साइंसी तहकीकी इदारों ने जामे अंदाज से चीन के साथ तावन करना शुरू कर दिया। चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज के वाहिद पाकिस्तानी माहिर की हैसियत से डॉक्टर अताउर रहमान ने अपनी टीम की क़यादत में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के तावन से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पहला वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कायम किया। हमने कई ड्रग्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी जो चाइनीज़ हर्बल ड्रग्स के ये बहुत अहम काम कर रहा है इस वक्त ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पर, और इन बहुत से अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त हो रहे हैं जिसके अंदर कोरोना वायरस के ऊपर जो तहकीक हो रही है वो भी शामिल है कि कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ एक्टिव हैं, उनकी भी तहकीक हो रही है। डॉक्टर अताउर रहमान ने इंग ख्वांगचिंग फाई कैप्सूल को पाकिस्तान लाने में मदद फराहम की है और चीनी और पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के साथ कोविड-19 का इलाज उनकी अगली तहकीक का मरकज है, जिसके अंदर वैक्सीन डेवलपमेंट, जड़ी बूटियों पे जो तहकीक है और जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो चाइना में भी पाई जाती हैं और पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, उनके लिए ऐसी जड़ी बूटियों की तलाश जिनके अंदर ऐसे मुरक्कबात हों जो कि बहुत यूज़फुल हों और बीमारियों में काम आ सकें। ये वबा पूरी इंसानियत की दुश्मन है और चीन और पाकिस्तान में तिब्बी कारकुन न सिर्फ शाना बशाना इसके खिलाफ लड़ रहे हैं बल्कि मुश्तरका तौर पर अद्वियात को भी तैयार कर रहे हैं। हमने जो कुछ किया वो ज्यादा नहीं है। हम चूंकि तिब्बी अमला हैं, हमने सिर्फ वही किया जो हमारे चीनी फौजी डॉक्टरों ने हमें कहा। हमने पाकिस्तान को वबा का मुकाबला करने में मदद दी और फ्रंट लाइन पर आम लोगों को बचाया। मेरे ख्याल में हमने चीन और पाकिस्तान के माबैन रिवायती दोस्ती को एक और पहलू से अमली जामा पहनाया है। और इसी तरीके से दूसरे इस वायरस की दूसरी अक़साम भी आ सकती हैं और दूसरे वायरसेस भी आ सकते हैं, तो हमें चाइना के साथ मिलकर हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए आइंदा के लिए। तो इस सिलसिले में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ है, और उनके साइंसदान जो है और हमारा एक बहुत करीबी इंटरेक्शन है। उन्होंने हमारे साइंसदानों को ट्रेन भी किया है और आइंदा भी ये सेंटर जो है जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर हम इसको डेवलप करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त कराची से प्रोफेसर इकबाल चौधरी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर बराए केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के डायरेक्टर हैं। आप चीन से दरामद शुदा कोविड की दवा चिंगहुआ चिंगगान ग्रैनुलर को पाकिस्तान में मुतारुफ करवाने के इंचार्ज हैं। जी प्रोफेसर साहब, अगर चीनी दवा चिंगहुआ चिंगगान ग्रैनुलर को पाकिस्तान में मुतारुफ किया जाए तो कोविड के मरीजों का इलाज करने में कोई मदद मिलेगी? आपका क्या ख्याल है? खास तौर पर ये TCM बहुत अहम है। हमने क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में किए और इसे अमूमी मकबूलियत हासिल हुई क्योंकि पाकिस्तान की आबादी रवायती अद्वियात के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती है। हम पाकिस्तान में खास तौर पर इस दवा की रजिस्ट्रेशन का शानदार मौका देख रहे हैं। कोविड-19 की वजह से हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज वैक्सीन और दीगर आलात बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन में मसरूफ हैं। यही वजह है कि इस खास दवा TCM की रजिस्ट्रेशन कदरे ताखीर का शिकार हुई, लेकिन हमारे ख्याल में ये TCM और दीगर TCMs पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगी और पाकिस्तान जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए मुआशी बल्कि सेहत की बेहतर सहूलियात और खुशहाली के मौके पैदा करेगा। CPEC पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को कराकोरम और हिमालय से गुजर रहा है जो कुदरती आफात के लिहाज से खतरनाक एरिया समझा जाता है। तो इस इलाके में अर्जियाती हालात का मुतालिबा CPEC प्रोजेक्ट की तामीर के लिए निहायत अहम है। CPEC सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर और 21वीं सदी की मेरी टाइम सिल्क रोड के लिए पुल है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आला तरजीह दी गई है। CPEC की तरक्की से चीन और पाकिस्तान दोनों को फायदा होगा। इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मंसूबों पर मुअस्सर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाएं, खास तौर पर जो माहौलियाती साइंस की तहकीक के लिए अहम है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC चिंगहाई तिब्बत मुर्तफा के मगरबी किनारे और हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश के पहाड़ों से गुजरती है। ये इलाका कुदरती आफात का शिकार रहता है जो CPEC की तामीर के लिए शदीद खतरा है। साइंसी तरक्की का फरोग और वसाइल का इस्तेमाल हयातियाती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और तबाही से बचाव और खतरे में कमी पायदार तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। हाल ही में CPJRC के जरिए CPEC की पायदार तरक्की के उन्वान पर
चाइना पाकिस्तान हाई लेवल वेबिनार ऑन अर्थ साइंसेज कोऑपरेशन बीजिंग और इस्लामाबाद में ऑनलाइन मुनक्किद हुआ। वेबिनार का मकसद वसाइल और माहौलियात, आबो हवा में तब्दीली और इलाकाई तरक्की के शोबों में साइंसी और तकनीकी मसाइल का हल, सीपैक की तामीर में मदद और चीन और पाकिस्तान के माबैन मौसमी तस्वीराती शराकत को बढ़ाना था। अर्थ साइंसेज के शोबे में पाक चीन आलमी ताउन कोई गैर अमली मंसूबा नहीं रखता और रोजमर्रा की जिंदगी से दूर है। दरअसल ये दोनों ममालिक के लोगों की फलाहो बहबूद और माशी तरक्की से गहरा ताल्लुक रखता है। जनाब सू ने 2010 में शहराए कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग के एक वाक़े का भी हवाला दिया। मिट्टी के तोदे गिरने से मरकजी सड़क का 25 किलोमीटर का रास्ता बंद हो गया और लोगों को कश्ती के जरिए 118 मीटर ऊंचाई वाली एक घाटी से अबूर करना पड़ा। इस मसले से निपटने के लिए CPJRC के साइंसदानों ने एक जदीद मंसूबा तैयार किया, जिस पर अमल दरामद करना नामुमकिन समझा जा रहा था। आखिरकार इस मंसूबे की बदौलत लैंडस्लाइडिंग और तबाहशुदा झील पर इंजीनियरिंग की लागत के 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की बचत की गई। मजीद ये कि इस जगह को अब एक खूबसूरत झील के साथ एक खूबसूरत सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया गया है। हम पाकिस्तानी साइंसदानों के साथ मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, इसका मकसद सीपैक के मंसूबों की सलामती और कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। वेबिनार के दौरान CPJRC ने 2021 के नताइज, चैलेंजों, तहकीकी सिमत पर तहकीक की एक रिपोर्ट जारी की। चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ के स्कॉलर्स ने तालीमी और तहकीकी कामयाबियां शेयर की और अर्थ साइंसेज और सीपैक से मुताल्लिक इल्मी अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान में बहुत से हाइड्रो पावर स्टेशंस की तामीर करने का मंसूबा है। तामीराती अमल के दौरान इंजीनियरिंग से मुताल्लिक कुछ नाकिस तरीक़ाकार और हालात मंसूबों के डिजाइन को मुतासिर कर सकते हैं और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इसलिए तहकीक और तजुर्बे की जरूरत है। इसके अलावा खराब अराज़ियाती हालात भी नामुनासिब तामीरात का बाइस बनेंगे और मंसूबे की पेशरफ्त मुतासिर हो सकती है, जिसको बेहतर बनाने की जरूरत है। आबी ज़खायर मुकम्मल होने के बाद पानी की सतह को एडजस्ट किया जाएगा, जिससे आबी किनारे की ढलवान पर चट्टानों में पानी के अज्जा में तब्दीली आ सकती है। इसके अलावा वक्फे वक्फे से मौसमी तब्दीलियां भी रोनुमा होती रहती हैं, जो लैंड स्लाइडिंग का बाइस बन सकती हैं। अगर आबी ज़खायर वाले इलाके में कोई बड़ा तोदा गिरे तो इससे लहरें बढ़ जाएंगी, जो आबी ज़खायर के दोनों अतराफ लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा बनेगी। लिहाजा इसके लिए पहले से मंसूबाबंदी जरूरी है। जहाँ तक समुंदर का ताल्लुक है तो अगरचे हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पास पिछले तहकीकी जहाज़ों के जरिए हासिल करदा कुछ मालूमात मौजूद हैं, जो गवादर और कराची के पानियों में ज़ेरे ज़मीन समुद्री फर्श के तफसीली जुग्राफियाई मालूमात पर मरकूज हैं। हमने समुद्र की तह में रोनुमा होने वाली तब्दीली का मुताला किया है और सुनामी की इब्तदाई इंतबाह के हवाले से तहकीक की है। इस वक्त हम चीन में इब्तदाई इंतबाही मॉडल तैयार कर रहे हैं। जैसे ही ये खुलेगा हम वहाँ के समुद्री इलाकों में इसकी आजमाइश करेंगे। जनाब सू का मानना था कि लोगों के जरिए मुआश के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तामीर में अपने किरदार के अलावा अर्थ साइंस गुर्बत के खात्मे में भी अपना किरदार अदा करती है। जियो साइंस को इलाकाई गुर्बत के खात्मे के साथ मरबूत किया जा सकता है। चीन यही कर रहा है और पाकिस्तान में भी ऐसा किया जा सकता है। बीमारी और आफात ऐसे दो अवामिल हैं जो गुर्बत का बाइस बनते हैं। बीमारी के बाइस गुर्बत खानदानी है, आफात की वजह से गुर्बत इलाकाई है और हमारी कोशिशों के जरिए इसका खात्मा किया जा सकता है। CPJRC हेडक्वार्टर तकरीबन 50 एकड़ इस वक्त QAU कैंपस में वाक़े है, जिसकी तामीर की तैयारी जारी है। इसके अलावा CPJRC अर्थ साइंस टैलेंट की एक खेप तैयार कर रही है और इस शोबे में काम के लिए मजीद पाकिस्तानी स्कॉलर्स को दाखिला देगी। दरी असना सीपैक का इंफॉर्मेशन सिस्टम और शेयरिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और मौजूदा अदादोशुमार के वसाइल को मरबूत करते हुए इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। CPJRC के 2021 के मंसूबे के मुताबिक सू ने बताया कि वह समुंदर से लेकर बरियाज़म तक आबो हवा की तब्दीली और माहौलियाती असरात, कुदरती खतरात और तबाही के खतरे में कमी, वसाइल के माहौल और सब्ज़ तरक्की में कशरे अर्ज के तामुल पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इससे सीपैक के लिए क्या ज़मानत फ्राहम कर सकती है? आइए हरिपुर यूनिवर्सिटी के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर जावेद इकबाल से इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। तो आपके ख्याल में कुदरती आफात का मुकाबला कैसे किया जाता है और फॉर वार्निंग कैसे किया जाता है? बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, उसमें
ایک یہ ہے کہ آپ مانیٹرنگ انسٹرومنٹ انسٹال کرتے ہیں مختلف علاقوں میں، گلیشیئرز میں، یا جہاں پہ لینڈ سلائڈز ہو رہی ہوتی ہیں یا جہاں پہ فلڈنگ ہوتی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، تو وہاں پہ انسٹرومنٹ ہے لائک آپ ویدر اسٹیشن انسٹال کرتے ہیں، یا گلوف مانیٹرنگ جو ہے گلیشیئرز کے حوالے سے وہاں پہ آپ ٹیمپریچر یا ڈیپتھ اور ڈینسٹی جو سینسز ہے وہ انسٹال کرتے ہیں، ٹوٹل اسٹیشن انسٹال کرتے ہیں، اور اگر ان ڈیپتھ آپ نے کچھ سلوپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو انکلائنومیٹر ان کی موومنٹ جو ہے موومنٹ اینڈ ڈیپتھ کے لیے وہ انسٹال کرتے ہیں. تو وہ پرابلم جب آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے فرسٹ یہ جو مانیٹرنگ ہے اس کے حوالے سے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پراپر میٹیگیشن اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے پرپوز کی جاتی ہے. لیکن ریسنٹلی جو ایک چائنا میں جو ایک ارلی وارننگ کے حوالے سے ایک جو ٹیکنیک جو چل رہی ہے، جو اپروچ چل رہی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، وہ ہے کمیونٹی بیسڈ ارلی وارننگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی جو پوٹینشیل ایریا ہوتا ہے جہاں پہ یہ قدرتی آفات یا نیچرل ہیزرڈ کہہ لیں، اس کی جو ہے اس کا جو خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ یہاں پہ اگر اس طرح کے آپ نے کوئی بھی کلیو دیکھے تو آپ انفارم کریں. انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں ابھی تک ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. فیوچر میں ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیونکہ کمیونٹی بیسڈ جو ہے سب سے زیادہ افیکٹو ہے. پاکستان میں سرطان کے مریض زیادہ ہیں، لیکن اس کا علاج طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے محدود ہے. چین اور پاکستان اس شعبے میں تعاون کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ پاکستان لافنس میڈیکل ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ کے سی ای او ڈاکٹر احمد فقاس اور بیجنگ فرینڈشپ ہسپتال سے پروفیسر چو چیچن ایک طویل عرصے سے چین اور پاکستان کے مابین طبی میدان کے تعاون میں سرگرمی سے کام کر رہے ہیں. چین پاک دوستی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ان کی کہانیاں سنیے. ہماری کوششوں کا مقصد نہ صرف مریضوں کا علاج کرنا ہے بلکہ اس کا مقصد پاکستانی ماہرین کے ایک گروپ کی تربیت اور تیاری بھی ہے. پچھلے 6 سالوں سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جگر کے مریض کافی زیادہ ہیں، لیکن ملک میں سالانہ جگر کی پیوندکاری کے 200 سے زیادہ کیسز نہیں ہیں. پاکستان کی مارکیٹ میں ایک بہت بڑی ضرورت تھی کیونکہ پاکستانی مریضوں کو کینسر کا پتہ لگانے، علاج اور تھراپی کے لیے ایک مخصوص جگہ کی ضرورت ہے. پاکستان میں کچھ اسپتال موجود ہیں، وہ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک اور سیٹ اپ چاہیے. جدید ترین ٹیکنالوجیز کو عمل میں لانے کے لیے چین کے ساتھ قریبی تعلقات کی ضرورت ہے. گردے کی پیوندکاری یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے برعکس جگر کی پیوندکاری کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر جگر ختم ہو جاتا ہے اور جگر کا ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جاتا تو مریض زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا. اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت سارے مریضوں کا علاج نہیں ہوا حالانکہ ان کی حالت سنگین تھی. مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ جب تک ٹیکنالوجی موجود ہے ان بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر چو اور ان کی ٹیم 2018 کے بعد سے متعدد بار پاکستان کا دورہ کر چکی ہے اور جگر کی 40 سے زیادہ کامیاب پیوندکاری کی سرجری کر چکے ہیں. یہ جگر کے ٹرانسپلانٹ کے تعاون منصوبے کا ایک حصہ ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت بیجنگ فرینڈشپ ہسپتال کے ذریعے کرایا گیا ہے. 2015 میں پاکستانی سفارت خانے سے لوگ ہمارے اسپتال آئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ پاکستانی ڈاکٹروں کو تربیت دینے میں اور پاکستانی مریضوں کو سرجری کے لیے چین منتقل کرنے پر تعاون کر سکتے ہیں. اس وقت ہم نے سوچا اگر ہم ڈاکٹروں کو تربیت دینے میں ان کی مدد کریں تو مسئلے کے طویل المیعاد حل کا یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. طبی تبادلے کے دوران چین اور پاکستان میں بہتری آئی ہے. دراصل ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کیونکہ بہت سی خاص بیماریاں جو پاکستان میں عام ہیں چین میں غیر معمولی ہیں. ہم مسلسل بہتری اور ترقی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہمی فائدہ مند ہے. ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں مزید وسعت کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے. لیپروسکوپی اور جنیاتی تجزیہ اس شعبے میں 2 جدید ترین ٹیکنالوجیز اور مستقبل میں ڈاکٹر چو کی ٹیم کی ترجیحات ہیں. مریضوں کے درد کو مؤثر طریقے سے دور رکھتی ہے اور علاج کی شرح کو بہتر بناتی ہے. ان میں کینسر کی ابتدائی اسکریننگ بہت ضروری ہے.
जब आप कैंसर का जल्द पता लगा लेते हैं तो इसके नताइज ज्यादा बेहतर होते हैं। इस तरह कैंसर के फैलाव की शरह नीचे आ जाती है। एक बार जब आपके पास कैंसर का मर्ज आता है और आप इसका इलाज करते हैं तो बाज़ औक़ात नताइज अच्छे नहीं आते, लिहाजा ये आपको इब्तदाई मरहले में करना होगा। हमें शऊर बेदार करना होगा और हमें जल्द पता लगाना है। इब्तदा में पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के हवाले से यूरोपीय ममालिक कई सालों से काम कर रहे हैं। चीन भी कई सालों से इसको अपने अस्पतालों में नाफिज कर रहा है। हम भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं और हम पाकिस्तान में भी ऐसा ही सेटअप कायम कर सकते हैं। हम ये टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में कैंसर की जल्द शनाख्त हो सके। तिब्बी तबादले के हवाले से सर्जिकल ट्रेनिंग एक बतदरीज अमल है। सर्जिकल ट्रेनिंग एक सुस्त रफ्तार अमल है जिसमें महज सर्जरी को देखने की बजाय मशक की जरूरत होती है। इसमें सीखने का अमल शामिल है। पाकिस्तान में क़याम के दौरान हमारी ख्वाहिश होती है कि ये वक्त कम किया जाए लेकिन इसको मजीद हमवार बनाएं। लिहाजा इस मामले में मुझे लगता है कि इनको खुद सर्जरी अंजाम देने में कम अज कम 2 से 3 साल लगेंगे। जिगर की ट्रांसप्लांट सर्जरियों की कुल तादाद 40 से ज्यादा है। हमारे बहुत से साथी हैं जो अपने खानदान की देखभाल नहीं कर सकते या जिनके बच्चे छोटे या स्कूल में हैं। ताहम हम सब अपने दो तरफा टेक्नोलॉजी के तबादले की अहमियत को समझते हैं। खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी मरीजों की बहाली, सेहत और इनकी टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाने में मदद के लिए हम इज्जत का एहसास और इस मकसद के लिए खुद पर फख्र महसूस करते हैं। मंसूबे के आगाज में दोनों ममालिक के माबैन तिब्बी तावन में कुछ मुश्किलात पेश आईं। दरअसल हम कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं। इब्तदाई तौर पर मैंने महसूस किया कि ये एक मुश्किल काम है क्योंकि वहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लगता है और हमें कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। पाकिस्तान यकीनी तौर पर ख्वाहिश रखता है कि हम जब भी मौजूद हों तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज करें। ताहम हिफाजती लिहाज से हर ट्रांसप्लांट सर्जरी के अपने तकाजे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक सर्जरी के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे दरकार होते हैं। चूँकि हमारा पाकिस्तान में क़याम ज़्यादा तवील नहीं होता, हम सिर्फ काम का बोझ बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कई दिनों तक रोज़ाना 2 सर्जरी करते हैं। दर हकीकत ये ना सिर्फ हम पर बल्कि पाकिस्तानी तिब्बी अमले के लिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारे सर्जनों के अलावा दीगर तिब्बी अमले का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कोविड-19 वबा की वजह से चीन और पाकिस्तान के माबैन तिब्बी तबादलों पर क्या असर पड़ा है? जिगर की पैवंदकारी में पाक चीन ताउन से मुतल्लिक हमारी कोशिशें रुकी नहीं हैं। मरीजों की तादाद में कमी नहीं आएगी और तलब अब भी मौजूद है। फिलहाल इनकी सर्जरी कराने में भी बहुत सारी मुश्किलात और ख़तरात हैं। लिहाजा दुआ है कि वबा जल्द अज जल्द ख़त्म हो और हम इन्हें जल्द अज जल्द अपना काम दोबारा शुरू करने में मदद कर सकें। चीन और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर चीन और पाकिस्तान के माबैन तिब्बी तावन के हवाले से इनकी क्या तजावीज़ और तवक्कुआत हैं? इस साल पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। चुनाचे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात 70 साल पहले के चेयरमैन माओ के ज़माने से हैं। ये 1 या 2 साल की तरह नहीं है। दोनों ममालिक एक साथ खड़े हैं। हम मिलकर काम कर रहे हैं। अब CPEC के आगाज़ के साथ ही ये ताउन मज़ीद करीब तर हो गया है। हर सतह के लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। आने वाले सालों में हम ख़ास तौर पर तिब के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कर सकते हैं। दोनों फरीक बाहम सीख सकते हैं। ये एक तरफा नहीं है और चीन के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा ख्वाब वही रहेगा। ख़ास तौर पर सेहत के मैदान में आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है और मेडिकल के मैदान में हम चीन से बहुत सी कारआमद चीज़ें ले सकते हैं। गुज़श्ता बरसों में हम कई बार पाकिस्तान गए हैं। हम फौजियों समेत पाकिस्तान में आम लोगों की दोस्ती, एहतराम, देखभाल और यहाँ तक के मोहब्बत को दिल की गहराइयों से महसूस कर सकते हैं। लिहाजा जैसा कि इस साल दोनों ममालिक के मबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है, हमें उम्मीद है कि जिगर की पैवंदकारी में जल्द से जल्द अपनी मदद का दोबारा आगाज़ करेंगे और हम मज़ीद मरीजों के फ़ायदे के लिए मिलकर काम करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।